एक तो मैंने आप लोग को बताया था एक कि बिहार का जो वो कैसे हुआ डाउनफॉल बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ये एक रीज़न था, यही एक ओनली रीज़न नहीं था, एक रीज़न था। उसके बाद 2000 में आपको पता है बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ। वो बिहार से झारखंड अलग हो गया, झारखंड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। तो जितना भी मिनरल्स रिच जो था हमारा बिहार झारखंड कंबाइंड, वो सारे मिनरल्स चले गए झारखंड की तरफ, सारा मिनरल बेस चला गया झारखंड की तरफ। और बिहार लार्जली बिकेम डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बिहार लार्जली बिकेम डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ऑल द मिनरल बेस वेंट टू झारखंड। तो इस 2000 के बाद से भी और ज़्यादा डिक्लाइन हो गया बिहार का, और ज़्यादा डिक्लाइन होगा प्रोडक्शन के फील्ड में, क्योंकि बिहार लार्जली बिकेम डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड देर वॉज नो सॉल्यूशन टू द फ्लड्स, नॉर्थ बिहार फ्लड्स, Kosi and Gandak river, there was no solution to the government for that. So that even worsened the situation. So two important things that you should remember: one was Battle of Buxar and then the formation of Jharkhand. That crippled Bihar even more, further into the darkness of poverty, darkness of labor migration, darkness of never-ending search for development. Yes, it's a never-ending search for development. That is all I can say about Bihar. This never ending search for development. Never ending search. So, if any government says ki, okay, we will bring back Bihar to the developed state, developed phase, or to the state of developed state, then they must focus on the key things like industries, labor migration, education, companies, all the key things. Instead of focusing on the overbridge constructions, metro constructions, those are good, those are amenities. Those are amenities. You're just having something. And these projects are being already being passed by the central government. So it's a government of India project, not especially a Bihar project. It had to be completed. It has to be completed anyhow. Whether whoever is the CM doesn't matters. So these things we have to keep apart. The main thing is that the basic things, that because how long the migration will continue for the job, for everything? How long? Economically, Bihar is much behind than Maharashtra. Forget about Maharashtra. Maharashtra means Mumbai, Thane, all the things, all the big cities of Maharashtra. You know, Mumbai, Thane. Then there is all the Pune. So just leave all these things. Just come to Mumbai only. One Mumbai, one Mumbai's economy is even much bigger than Bihar. One single Mumbai's economy is much bigger than Bihar. You can see on the Google, you can also search it. I'm not saying any fake thing. One Mumbai's economy is much bigger than Bihar. Forget about entire Maharashtra. If we bring all the combined economy of Maharashtra. So, and then now leave Maharashtra. Now come to the West Bengal. Now West Bengal also, we are much behind West Bengal. Much improved infrastructure, much better network of companies, growth, everything. Much better than Bihar. Even West Bengal, Kolkata, much developed than Patna. Much more. And then we all know about Delhi, and then we know South India. South India is already booming under the IT boom. You can understand. Majority of the South Indians are employed in big IT firms outside India. So you can understand the economy. They are the highest taxpayer. South Indians, Maharashtrians, they are highest taxpayer of India. Highest taxpayer. So the so these are so big differences between the development. If we compare it state wise, like Bihar versus Jharkhand, Bihar versus Bengal, Bihar versus Maharashtra, Bihar versus Chhattisgarh. If we make a comparison like this, then we will check it is so much behind than other states. Bihar, so much behind in everything, in every aspect, education, infrastructure, in every aspect, number of colleges, everything. So, so better action than just speak the words.
better action is better than just speaking the words, making the promises. It's a very big issue. It's not a very small issue like developing a state like Bihar, which is already came so backward. Already it is so much backward, so much lagging, so much behind, and then you are saying that we will develop Bihar. Already Bihar is so behind. It is struggling. It is just even not running. It is crawling. It's crawling. You're just talking about a state which is crawling, है ना? क्रॉलिंग कर रहा है, इस स्टेट में आ चुका है हमारा बिहार, हम सबका बिहार। मैं कहता हूँ मैं बिहार में रहता हूँ, मैं कहता हूँ हम सबका महाराष्ट्र। आफ्टर ऑल वी आर ऑल इंडियंस, वी डोंट नीड ए पासपोर्ट टू ट्रैवल फ्रॉम बिहार टू महाराष्ट्र, बिहार टू तेलंगाना, वी डोंट नीड ए पासपोर्ट फॉर दैट। सो आई प्राउडली से हमारा बिहार, हमारा महाराष्ट्र, हमारा बंगाल, because after all it is all are part of India is a big unit, so we say that proudly. So the issues बहुत ज़्यादा है, बहुत व्यापक है। स्टेट बाय कंपेयर करो तो स्टेट में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, फिर अपना जो प्रॉब्लम है ये सब है। तो अब पता नहीं किस तरह से, मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है एज ए विजनरी, एज ए कैलकुलेटिव पर्सन, एटलीस्ट 2035, 40, 45, and the same year I have kept for Patna to become a metro city. It's not so easy. It looks very very बाहर से लगता है कि हाँ यार पटना में मॉल्स है, ब्रिजेस है, तो लोग समझते हैं पटना डेवलप कर गया, पटना मेट्रो हो गया, दिल्ली हो गया। नहीं 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 नहीं, ये सब चीज़ें डेटा पे होती है, डेटा पे। इसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। मेट्रो का एक पैरामीटर होता है, पैरामीटर आप जानोगे तब आपको समझ में आएगा। ये बिल्डिंग से सब देख के आप नहीं बोल सकते हो कि पटना बहुत बड़ा शहर हो गया, तो लगता है पटना दिल्ली। ना 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 ना, पटना दिल्ली आपको लगता होगा क्योंकि आपने वही पटना देखा होगा जो पटना कुछ भी नहीं था, जहाँ बिल्कुल ब्रिजेस नहीं थे, बिल्कुल कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, वही वैसा ही पटना आपने देखा होगा। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, डेवलपमेंट हुआ है, मैं नहीं कहूँगा। नीतीश कुमार हैज़ डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पटना, अनलिमिटेड थिंग्स ही हैज़ डन फॉर पटना। लगता ही नहीं कि वो पटना है, जो पटना आज से 10 साल या 15 साल पहले हुआ करता था, 20 साल, अब लगता ही नहीं वो पटना है। नीतीश कुमार ने काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया नीतीश बाबू ने, फुल क्रेडिट टू हिम। बट अभी बहुत दिल्ली दूर है, अभी बहुत सारा वर्क होना है। देन ओनली एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पर आएगा बिहार, और फिर उसके बाद पटना धीरे धीरे एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पर आएगा कि मेट्रो बनने के कगार पे आएगा, मेट्रो बनने के कगार पे। ऐसे मेट्रो ट्रेन चालू करने से नहीं होगा, मेट्रो बनने के कगार पर आएगा पटना। तो काफ़ी लंबा अभी एक पीरियड लगेगा, काफ़ी लंबा। और लेकिन मैं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट बहुत फास्टली काम कर जाए। आपको पता है चंद्रबाबू नायडू के बारे में, साउथ इंडिया को कैसे डेवलप किया था, रैपिडली एकदम डेवलप कर दिया साउथ इंडिया। हो सकता है हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश कुमार भी कुछ ऐसा ही करें, या उनकी गवर्नमेंट कुछ ऐसा ही करे, एकदम रैपिड डेवलपमेंट कर दे। लेकिन as a visionary, as an observer, as an analysis, I can clearly say I don't see such a rapid development in the near future. Yeah, development will surely happen, confirmly happen, but I don't see any rapid development, very fast development, because we are talking about a state which has never seen the sign of development, never seen. Has seen in some patches. So it's a big challenge. We can say easily, I can say easily in the video, you can say anything on the road, you can say pass any comment, but the people who have to do that, they know the real challenge. It's not so easy, इतना आसान नहीं है। बोलना और करने में बहुत फ़र्क है, लेकिन इतने बड़े बड़े वादे और बाजे इतने बड़े बड़े बजे हैं, तो वी होप, हम लोग तो यही होप करेंगे, बीइंग ए बिहारी, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, एंड हुएवर इज वे, तो वो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि अपना स्टेट भी अच्छा से डेवलप हो, सब सही रहे, सब लोग खुशहाल रहे थोड़ा एक। और थोड़ा सा लोगों को भी बदलना होगा। ये सब कास्टिज्म मुस्टिज्म सब जो चलता है बिहार में, जातिवाद विवाद, ये तो लोगों का पैदा किया हुआ है ना, इसमें तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ नहीं है। ये तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए ना, कॉमन है ना। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, ये इस कास्ट का है, वो इस कास्ट का है, इस कास्ट का है, ये सब क्या है भाई? आप लोग कब इससे ऊपर उठेंगे? बिहार के जो निवासी हैं, इससे असर पड़ता है डेवलपमेंट पे, आप लोग समझते नहीं हैं। ये सब चीज़ें डेवलपमेंट पे असर करती है। आपका जो ये नैरो माइंडनेस, इसको कहेंगे नैरो माइंडनेस, इस नैरो माइंडनेस से ऊपर उठिए भाई। आप सम्मान कीजिए टैलेंट का, सम्मान कीजिए टैलेंट का,
सम्मान कीजिए इंसान का। ज़िंदगी कोई आपको परमानेंट तो मिली नहीं है, आपको अपना लाइफ जीना है, फिर आपका विदाई हो जाएगा। जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं उसी रीति रिवाज से आपको विदाई हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा, आप थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा पब्लिक को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। कास्टिज्म ये सब बहुत रैपिड है बिहार में, कास्टिज्म बहुत रैपिड है बिहार में, इसको बिल्कुल कर्व करने की ज़रूरत है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है। मैं ऐसे वीडियो में बोल रहा हूँ, चैलेंज इज़ वेरी बिग, इट्स अ बिग 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 चैलेंज, चैलेंज इज सच अ बिग। तो इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन को मैंने ख़त्म किया, सोचा इस वीडियो में बात करूँ। तो क्योंकि ये दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे स्टेट के बारे में, बिहार के बारे में, हमारे पटना शहर के बारे में है। तो इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को थोड़ा लंबा करूँ तो बताऊँ आपको, आपका व्यूज़ आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कमेंट्स वगैरह में। तो ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इशू को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारा स्टेट डेवलप करके, रैपिड डेवलप है, स्लो डेवलपमेंट हुआ। लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए, डेवलपमेंट सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, बस ये बात है, सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए बराबर से, सेंटर्ड डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको मेंटेलिटी भी चेंज करना होगा, सब कुछ चेंज करना होगा, तभी ये ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल upbringing is possible. If the common public also pledges to change the mindset, the mentality, that's very very important. Thank you.